अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأماتة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا دوسرا عظیم القدر مہینہ سفر المظفر اشہر حرم میں کا محرم ابھی گزر چکا. یہ سفر المظفر ہے. عام طور پر زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. کوئی اچھا کام سفر المظفر میں نہیں کرتے تھے. جیسے آج کل ہندو سماج میں ایسی چیزیں ہیں، بلکہ مسلمان بھی بہت سارے جو علم سے دور ہیں، شریعت کے احکامات سے بے خبر ہیں، ان کے یہاں بھی نیک پالی اور بدچالی کا سلسلہ آج بھی ہے. اسی لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا سفر ولا طیرۃ ولا حامۃ. عربوں میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ بوم نامی پرندہ جب نکلتا سفر سے پہلے تو وہ سفر نہیں کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ سفر اب مناسب نہیں ہے، یہ پرندہ نظر میں آ گیا، یہ سفر ہمارا نحوست والا ہے. عربوں میں یہ بھی دستور تھا، ایک کی بیماری دوسرے کے حق میں بنفس نفیس متعدی مانتے تھے. کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی والے کے پاس نہیں جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے اس کی ٹی بی اس کو لگ جائے گی، اس کا کینسر اس کو لگ جائے گا، جو مہلک بیماری ہے. اور وہی بیماری میں بے عینی ہی بے نفس نفیس تعدی کی صفت مانتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. کسی بیماری میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری خود اللہ بن کر کے جس کو چاہے بیمار کے علامہ نقصان پہنچا دے. اور بوم نامی پرندہ کوئی چیز نہیں ہے. بڑا مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے. جیسے سال کے 12 مہینے ہیں، اس طرح کا یہ مہینہ سفر المظفر بھی ہے. میں نے اس وقت قرآن کریم کے الگ الگ مقامات کے آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नक्ल किया है, पढ़ करके सुनाया। आयात और अहादीस में दो चीजें बयान की गई हैं। दो चीजें ईमान के अरकान है। जैसे नमाज के अरकान 7 है, इस तरह ईमान के अरकान 2 है। इस्लाम के 2 रुकन हैं, इस्लाम की 2 बुनियादें हैं। मुख्तसर तौर पर इन 2 बुनियादों को आज की इस मजलिस में पेश करना है। इस्लाम की पहली बुनियाद अत्ताज़ीम लिअम्रिल्लाह, और इस्लाम की दूसरी बुनियाद यानी ईमान का दूसरा रुकन अशफ़क़त अला ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह के मखलूक के साथ शफ़क़त का बर्ताव। वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है आका के इस फरमान को समझा जाए। इस्लाम का पहला रुकन और दीन की पहली बुनियाद अल्लाह के अवामिर की अज़मत, अल्लाह के कानून, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की तरफ से बनी नौए इंसानियत के लिए हिदायतनामा, इसकी अज़मत दिल में हो। अल्लाह के कवानीन, अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के फरामीन, इसकी अजमत आदमी के दिल में हो। आज जुमे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कलाम में सूरह जुमुआ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज जुमा की पहली अजान हो जाए, अब मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो। सई इलल जुमुआ वाजिब है, अपने अमल से और अपने फेल से और अपने कौल से जुमा की तरफ दौड़ पड़ो। यह अल्लाह का एक अम्र है, अल्लाह का एक हुक्म है, अल्लाह का एक कानून है। दिन में 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, औक़ात मुक़र्ररा पर दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूकी करो। अल्लाह का हुक्म है लेन देन में धोखेबाजी न करो। अल्लाह का हुक्म है शराब न पियो। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमलि शैतान। शराबी, क़मारबाज, बूत के पूजने वाले की तरह है। शराबी दौराने शराब मर गया, कुफ्र की हालत में मौत आई। सट्टा खेलने वाला सट्टा खेलते खेलते मर गया, कुफ्र की हालत में मौत आई। होना ये चाहिए था कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफनाया न जाए। शारिबुल खम्र काबिदुल लात वल उज़्ज़ा, शराबी लात और उज़्ज़ा के पूजने वाले, बुत परस्ती करने वाले के दर्जे में, और बुत परस्त मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता। शराबी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाएगा। शराब से, तौबा से पहले मर जाए, ईमान खत्म हो जाता है। अल्लाह के अहकामात 2 बुनियादों पर है। एक को अवामिर कहते हैं, एक को नवाही कहते हैं। कुछ करने के काम है, कुछ न करने के कामों से रुके रहना है, ये काम नहीं करना है। मनहियात और मामूरात दोनों के मजमूए को अल्लाह के अहकामात कहते हैं। अल्लाह के अवामिर की अजमत, अल्लाह के कानून की अजमत दिल में कब आएगी? जब अल्लाह की अजमत दिल में आएगी। जब तक अल्लाह की अजमत दिल में नहीं है, अल्लाह के कवानीन की अजमत दिल में नहीं। बहुत सारे लोगों की तरफ ये खिताब मुतवज्जे होता है। कितने कामिल मुसलमान हैं जो अगले दिन से जुमा का एहतमाम करते हैं, कितने नाकिस मुसलमान हैं कि जुमा का दिन आने पर भी जुमे की तैयारी नहीं करते। इसलिए इस्लाम का ज़ाब्ता फिक्ही इस्लामी का कानून ये है, जब जोहर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया
यानी जवाल हो गया। जुमे के दिन अब जुमे पढ़े बगैर सफर नहीं कर सकते। जब जुमा की नमाज का वक्त दाखिल हो चुका, जुमा पढ़े बगैर सफर नहीं कर सकते। जुमा पढ़ लेने की और जुमा पढ़ने के बाद सफर करने का, यहां तक फिक्ह इस्लामी का कायदा और ज़ाब्ता लिखा है। अल्लाह की अजमत दिल में कब आएगी, अल्लाह के कवानीन की अजमत दिल में कब आएगी? जब अल्लाह की अजमत है, जब अल्लाह की बड़ाई दिल में है, अल्लाह के कानून की बड़ाई दिल में आएगी। जैसे एक बादशाह है, वो किसी जगह सफर करता है। अब दो किस्म के लोग होते हैं। एक बादशाह को पहचानते हैं, उसके मर्तबे को पहचानते हैं, उसकी ताकत का इस्तेहजार है, उसकी हैबत उसके दिल में बैठी हुई है। एक नादान है जिसे मालूम नहीं कि ये मुल्क का बादशाह है और बादशाहत के मर्तबे को वो पहचानता नहीं और बादशाहत की हैबत और अजमत उसके दिल में नहीं है, कोई कदर वो नहीं करेगा। और जो जानता है मनसब को, उसके दिल में हैबत और रौब पैदा होगा। तो अल्लाह के कानून की अजमत कब आएगी? जब अल्लाह की अजमत दिल में है। जो मुसलमान अहकामात को बजा आवरी कर लेता है, समझो उसके दिल में अल्लाह की अजमत है। और अल्लाह की अजमत कब आएगी? जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, तब जाकर अल्लाह की अजमत दिल में आएगी। जब अल्लाह की अजमत दिल में है, अल्लाह के कवानीन की अजमत दिल में आएगी। ये तीनों चीजें लाजिम मलजूम है। अल्लाह की मोहब्बत के बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। इंसान को सबसे पहले अपने दिल में जिस मोहब्बत को जगह देने की जरूरत है, वो अल्लाह की जात है, वो खालिक है, वो मालिक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई किस्म के दलाइल 1000 आयतों में इरशाद फरमाए। कहीं अनफुसी दलाइल वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ऐ इंसानों अपने अंदर झांक करके देखो, मैं अल्लाह हूं, तुम्हें समझ में आएगा। इन्न फी खल्क़िस समावात वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अपने ऊपर निगाह उठाकर आसमान को देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावात, इतना नीलगो आसमान अजीब अजीब किस्म की मुख्तलिफ रंगाहा से रंगा हुआ, बिगैर अमदिन तरौनहा, बगैर किसी पिल्लर और सुतून के कैसा टिका हुआ है। ये किसी जात का बनाया हुआ है, उस पर किसी की हुकूमत चलती है जो इसका खालिक और मालिक है। इसीलिए कुरान 1000 आयत में अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरा वजअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अजीब कुरान ने बयान किया। 7 आसमान बनाए, एक आसमान की बॉडी 500 बरस की मसाफत के बराबर बढ़ी, लेकिन कभी वो जमीन पर गिर पड़ता नहीं है। आसमान को अल्लाह थामे हुए है। जमीन आज के फलासफा का कहना यह है कि घूमती है। अगर फलासफा की बात मान ली जाए कि चलो कुर्राए अर्द घूमता है, तो जमीन पर वजन कितना इंसानों का, जिन्नातों का, जानवरों का, जमीन का, पहाड़ों का, दरख्तों का और जमीनी तमाम तर मखलूकात का अगर फलासफा का कौल ले लिया जाए और जमीन गर्दिश करती हो, तो कितने बड़े वजन के साथ ये गर्दिश करती है। एक दिन वो आएगा, अल्लाह जमीन को फाड़ डालेगा, जलजला कायम कर देगा, समंदर चीर देगा, पूरी दुनिया में सुनामी पैदा हो जाएगी। इज़ा समाउन शक्कत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तखल्लत। एक दिन आएगा, अल्लाह फरमाते हैं आसमान टूट जाएगा, जमीन में ज़लज़ला पैदा हो जाएगा और जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, जमीन अपने अंदर के खजाने उगा लेगी। ये सब कुछ होने वाला है। वो अल्लाह जिसने सूरज बनाया, फलासफा का कहना यह है सूरज
जमीन से 11 करोड़ गुना बड़ा सैयारा है, जो सुबह से शाम तक गर्दिश में है, बराबर चक्कर काटता रहता है, और पहली एक सेकंड में सुबह में कायनात की 3 लाख किलोमीटर में फसाफत में फैली हुई तारीकी को वो रोशनी में बदलता है। अल्लाह ने आसमानी दलाइल पेश किए अपने वजूद पर, जमीनी दलाइल पेश किए अपने वजूद पर। इंसान को कहा तुम अपनी जात में गौर करो, मेरा अल्लाह होना तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह की अजमत कब आएगी? जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में है तो माँ सिव अल्लाह में सबसे पहले अल्लाह आएगा। फिर हय्या अला सलाह की आवाज पर बीवी, बच्चे, जायदाद, हुकूमत, ओहदा, हर चीज कुर्बान कर देगा वो, इसलिए कि अल्लाह के मुनादी ने निदा दी है। अब इंसान का थर्मामीटर खुद नक्की हो गया। अगर अवामीर खुदाबंदी मुतवज्जे है और आदमी इसको फॉलो करता है तो मोमिन है, और अगर आदमी अपने अमल से इसको फॉलो नहीं करता तो वो कमजोर मोमिन है। उसको अपने ईमान को ताजा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह अगर दुनिया से मर गया तो कमजोर मोमिन मरेगा। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, फिर माँ बाप की मोहब्बत। यह दर्जात है। सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा मोहब्बत इनके दिलों में अल्लाह की थी। इसीलिए मक्के में 13 साल मेहनत के बाद नतीजा न निकलने पर पैगंबर के हुक्म से हिजरत कर ली। आज भी दुनिया में लोग हिजरत करते हैं। अभी का ताजा रिपोर्ट है, 20 लाख 20 साल अफगानिस्तान अमेरिका से लड़ा, 20 लाख अफगानी मुसलमान की शहादतें हुई, 1 करोड़ अफगान मुसलमान हिजरत करके दुनिया में फैल गए। एक मुल्क का हाल बताता हूं। 1 साल और 1 महीना हुआ। 14 अगस्त को आजाद हुआ था। आज सितंबर की 14 तारीख नहीं हुई। 20 साल में 20 लाख अफगान मुजाहिदीन की शहादतें हुई जो अमेरिका ने की। 1 करोड़ अफगानी मुसलमान अफगान छोड़ने पर मजबूर हुए। आज फिर से 1 साल इस्लामी ममलकत को और 1 महीना होने जा रहा है। फिर वापस बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया में एक तंजीम है जिनका नाम दाइश है, जो मुसलमानों की है। अमेरिका ने इस तंजीम को जन्म दिया है। इराक खत्म किया दाइश ने, और इराक सदर सद्दाम हुसैन की सल्तनत का खात्मा अमेरिका ने करवाया दाइश के मुसलमानों के हाथ। फलस्तीन के निगहत कमजोर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है दाइश के हाथ। अफगानिस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े माए नाज आलम, मसाजिद, दीनी दरसगाहें दाइश बमबारी करके खत्म कर रही है। ये मुसलमान है जो अमेरिका का पिट्ठू है। कभी इराक के खात्मे पर, कभी शाम के खात्मे पर, कभी फलस्तीन के खात्मे पर, और अभी अफगानिस्तान के खात्मे पर यह तुला हुआ है। इसलिए कि अमेरिका को इस्लामी सल्तनत अच्छी नहीं लगती। हम कितने हैं? हम 200 करोड़ है। हमारे 57 इस्लामी मुल्क और भारत में हम 35 करोड़। हम कम नहीं हैं। अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली मुस्लिम कौम कितनी है? 2 अरब। 1 अरब 100 करोड़, 2 अरब 200 करोड़। हम तो 200 करोड़ है। आज का तज्जिया ताजा रिपोर्ट, 57 इस्लामी ममालिक और मुसलमानों की तादाद कमोबेश 2 अरब 200 करोड़। और भारत में अजीब चैलेंज से मुसलमान गुजर रहा है।
सियासी इख्तलाफात, ओहदा और कुर्सी की हवस इंसानियत को तितर बितर करके रख दिया है। आपको मालूम होगा अल्लाह की आजमत, मोहब्बत दिल में है, पहले नंबर में अल्लाह बिठाना चाहिए, फिर अल्लाह का रसूल, फिर माँ बाप। सहाबी जलील खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक बात नकल कर दूं इस दावे पर। गज़वा बदर था, सन हिजरी 2 थी। अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद सहाबी है जिन्होंने अपनी मर्जी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम बना दी थी। अल्लाह के पैगंबर से इश्क और मोहब्बत बहुत बचपन से यारी थी। इनका एक बेटा बदर तक इस्लाम नहीं लाया था, गज़वा बदर के बाद इस्लाम लाया। जब गज़वा बदर के बाद वो इस्लाम ला चुका, एक दिन अपने बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में मौजूद था और अपने बाप से कहा, अबू जान, एक बात मेरे दिल में बार बार खटक रही है, वो आपसे कहना चाहता हूं। जब गज़वा बदर हुआ, आप अल्लाह के नबी की तरफदारी में 313 मुजाहिदीन इस्लाम के साथ लड़ रहे थे। आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत आपके दिल में, आपने तर्के वतन भी किया, मक्का छोड़कर मदीने में बस गए। दूसरे साल में बदर हुआ, ऐन मारिके में हम लोग आपके मुकाबले में थे, बाप बेटा आमने सामने थे। बेटा खुद अपने बाप से कहता है, वो भी अबू बकर सिद्दीक का बेटा, आप अल्लाह के नबी की हिमायत में, इस्लाम की हिमायत में, अल्लाह की मोहब्बत में, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए बदर लड़ रहे थे। आप 313 थे, हम 1300 थे। बदर में कई मर्तबा आप मेरे तलवार की जद में थे। मैं चाहता हूं एक तलवार में काम तमाम कर देता। कई मर्तबा आप मेरे तलवार के घाव में थे, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत पीदरी और शफकत पीदरी जोश कर जाती थी। क्या हाय, ये तो मेरा बाप है जिससे मुझे जन्म हुआ है, इसलिए बाप होने की मोहब्बत आप पर हमले से मुझे बचा देती थी, इसलिए मैं आप पर हमला नहीं कर सका। ये बेटा अपने बाप से रजूआत करता है, कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर का जवाब, इसलिए मैंने आपको कत्ल नहीं किया और बाप की मोहब्बत के गलबे ने आपके कत्ल से मुझे रोक दिया। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर का जवाब सुनने के काबिल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा, अगर एक मर्तबा भी तेरे बाप की तलवार की जद में तू आ जाता तो कसम खुदा ताला की मैं तुझे कत्ल कर देता। क्यों? बाप थे, वो तो बेटे थे, क्यों आखिर ऐसा जवाब क्यों दिया? हालांकि अल्लाह का नबी फरमा चुका है, अरहमु उम्मती भी उम्मती अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह का पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सिद्दीक अकबर नबी के बाद पूरी कायनात में सबसे नरम दिल इंसान, रहमा बैनहुम। इतना कड़क जवाब क्यों दिया? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी है, नबी की मोहब्बत बैठ चुकी है। इस्लाम कदम का दुनिया में बचाने के लिए हमने बदर की लड़ाई लड़ी थी, अल्लाह की निस्बत से मैं लड़ रहा था। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी हो, उस दिल के अंदर कभी भी मखलूक की मोहब्बत बैठ नहीं सकती है। इसको अल्लाह की मोहब्बत कहते हैं। सहाबाए किराम ने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर फमा बद्दलू तब्दीला। जिस मोहब्बत का परचम पैगंबर की सोहबत में रह करके वो लहरा चुके थे, जिंदगी के आखिरी सांस तक उसको बाकी रखा था। तो पहले नंबर में अल्लाह के अवामिर की अजमत, आज इसकी जरूरत है। मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज से मस्जिद खाली, जुमा ईदेन में कोई मस्जिद तंग न पड़ती हो ऐसा नहीं,
जुमा ईदेन में तमाम मस्जिदें तंग, बाकी तमाम दिनों के अंदर एक सफ, 1.5 सफ, 2 सफ, फजर की नमाज में मुश्किल से आधी सफ, तमाम मसाजिद का तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह यही हाल। क्यों? अल्लाह के अवामिर की अजमत नहीं है। अल्लाह की अजमत जब नहीं है, अल्लाह के कवानीन की अजमत नहीं है, तो अल्लाह की भी अजमत नहीं। जब अल्लाह की अजमत दिल में नहीं है तो अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में नहीं है। लिहाजा सबसे पहले नंबर में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, अल्लाह की अजमत दिल में पैदा करनी चाहिए। अल्लाह के अवामिर की अजमत इंसान के दिल में होगी तो सोचेगा, हाय मेरे रब ने बगैर दवाई के, बगैर गोली के रात को नींद, चैन की नींद मुझे नर्म बिस्तर पर सुला दिया। मैं तो सो गया था, मर गया था। अल्लाह पाक ने अन्नौम अकुल मौत, नींद तो मौत की बहन है। नींद आदमी जब सो जाता है तो मर जाता है, उसे रूह चली जाती है और फिर सुबह में उठते वक्त वापस रूह इस कालिब के अंदर डाली जाती है। इसलिए सुबह में उठकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तर तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे सुलाया, जो मुझे बेदार किया जिसने, और एक दिन मर करके उसी के पास जाना है। दुआ हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तर तारीफ अल्लाह के लिए है, मुझ मुर्दे को उसने जिंदा किया। मा अमातना, और फिर जाना भी अल्लाह के दरबार में है, ये दुआ पड़ता है। लिहाजा कोशिश करो अल्लाह के अवामिर की अजमत दिल में बिठा लाओ, और अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत जो हजरत सहाबा किराम के दिलों में थी। दूसरी चीज, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव। पहली चीज का हासिल क्या है? आदमी अल्लाह का होकर के रह जाए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, मामलात, माशरत, अखलाकियात, इबादत, भरपूर एहतिमाम, हर वक्त की दौड़ अल्लाह की तरफ, हर वक्त का ओढ़ना बिछोना अल्लाह, दूसरी कोई चीज नहीं। इस्लाम की एक बुनियाद मजबूत, पावरफुल, लेकिन दूसरी बुनियाद, इस्लाम का दूसरा रुकन अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव। अल्लाह की मखलूक अशफकत अला खल्क़िल्लाह, इसीलिए आका ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क़ मन युहसिन इला अयालिही। सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह के घर के लोग हैं। मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो या यहूदी हो, काफिर हो या बुद्धिस्ट हो, इंसान हो या जिन्नात हो, जानवर हो या हशरातुल अर्द हो, ये सब अल्लाह का परिवार है। अल्लाह के परिवार में सबसे अच्छा अल्लाह के यहां कौन है? जो अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव करे। इसे दीन की दूसरी बुनियाद, अल्लाह से ताल्लुक के साथ अल्लाह के मखलूक की खबरगिरी करना, इस्लाह बैनन नास के काम करना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम शुरू नहीं किया था, ऐलान नबूवत से पहले, इन्नका लतसीलुर रहीम व तक्सिबुल मअदूम व तहमिलुल कल व तक़रीद दैफ व तईन अला नवाइबिल हक, पैगंबर 5 काम करते थे। हमारी दावत की महफिलों में 5 काम की बहुत अहमियत होती है। ये 5 काम से पहले पैगंबर के 5 काम थे जिसकी जरूरत है, हर दाई को जरूरत है, हर आलिम को जरूरत है, हर शेख खानका वाले को जरूरत। आम तौर पर हमारी तीनों मेहनतों में से ये 5 काम निकल गए, दावत में से भी निकल गए, तालीम में से भी निकल गए और खानका में से भी निकल गए। दावत के 5 काम तो है, लेकिन पैगंबर की दावत से पहले के 5 काम जो पैगंबर की दावत की तरफ लोगों को मुतवज्जो किया वो ये थे। इन्नका लतसीलुर रहीम, आप नाता जोड़ते थे। तहमिलुल कल, बोझ में मुब्तला मखलूक के बोझ को दूर करते थे। तक़रीब दैफ, मेहमान नवाजी करते थे। तक़सीबुल मादूम, बेवा, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर, कल्लाश, मोहताज,
अपाहज, इसकी जरूरियात पैगंबर पूरी करते थे। अतईन वाला नवाइबिल हक, जमाने के हवादिसात पर लोगों की मदद करते थे। अभी हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना 75 साल हो गए। पाकिस्तान जब से बना तकसीम हिंद के बाद तकसीम हुआ, पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एक था। हिंदुस्तान बहुत फैला हुआ। जमीनी रकबे के एतबार से आप राजस्थान चले जाएं तो बॉर्डर पर ये पाकिस्तान की मस्जिद है, ये हिंदुस्तान की मस्जिद है। पाकिस्तान की जामे मस्जिद की फजर की अजान से हिंदुस्तान की मस्जिद मोहल्लावारी में अजान होती है। हमने वहां नमाज पढ़ी है, सामने दिखती है। कच्ची बॉर्डर है, वहां के मुकीम, यहां जुमा मस्जिद नहीं है, वहां बॉर्डर क्रॉस करके जुमा पढ़ के आ जाते हैं और इजाजत भी होती है। फैला हुआ बहुत बड़ा रकबा, फिर तकसीम हुई। इतिहास में जब से पाकिस्तान बना इतना बड़ा सैलाब कभी भी नहीं आया जो अब पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। पानी का अजब, बड़े बड़े उलमा के कुलूब हिल गए, अजीब किस्म की तबाही मची। लाखों नहीं करोड़ों जानवर मौत की घाट उतर गए। लाखों बच्चे मां बाप से बिछड़ गए। हजारों की तादाद में अमवात हो गई। मौत का कोई हिसाब नहीं। काफी दिनों के बाद कीचड़ में से लाशें बरामद होती है। अभी का वाकया है, चालू है ये। सैलाब के नताइज बस वो भुगत रहे हैं। कल भी कीचड़ में से लाशें निकल रही है। किसी घर में बच्चे रह गए, मां बाप चले गए। कहीं मां बाप चले गए, अनाथ बच्चे हो गए। जानवरों का तो कोई खैर जिक्र ही नहीं। मुस्तकबल करीब में इस मुल्क के उभरने की कोई बज़ाहिर शक्ल नजर नहीं आती है, इल्ला इंशाअल्लाह। पैगंबर इन हालात में तईन वाला नवाजिबिल हक, जमाने के हवादिसात पर, अल्लाह के इन फैसलों पर और कहरे खुदाबंदी में लोगों के आंसू पूछते थे। ये करने के काम है। इससे दावत मजबूत होगी, इससे तालीम मजबूत होगी और उससे तज़किया मजबूत होगा। कोई भी हो, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कभी ऊंट आता, अपने आका की जुल्म की शिकायत गर्दन डाल कर करता, कभी हिरनी आती और किसी सहाबी ने शिकार के लिए खीले से बांध दिया है, पैगंबर से इजाजत लेकर अपने बच्चों को जंगल के अंदर दूध पिला करके वापस खड़ी हो जाती। वाकयात मशहूर। वो नबी जिनकी ऊंटनी कसवा पैगंबर के दुनिया से रहले फरजा जाने के बाद भूख की हालत में तड़प तड़प करके जान दे दी। वो खच्चर जो पैगंबर का था, अल्लाह के नबी की जुदाई के सदमे में कुएं में अपने आप को झोंक करके जान दे दी। लेकिन नबी के बाद जिंदा रहना इन्होंने पसंद नहीं किया। वो ऐसी जात थी, अशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव। यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, अपाहजों पर, माजूरों पर, बीमारों पर नबी ने फरमाया, बीमार के घर सुबह में जाओ, खबर निकालो, शाम तलक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। मैंने एक मर्तबा किसी मस्जिदवार जमात में मेरी जब बात थी यही पर गालिबन मैंने कहा था, मस्जिदवार जमात का एक काम यह भी है, 3 दिन की तश्कील करते हैं, वसूली करते हैं, 10 दिन की वसूली करते हैं, चिल्ले की वसूली करते हैं। एक जमात रोजाना उन घरों की तरफ जाए जो मोहल्ले में बीमार हो और उनकी बीमार पुरसी करे। इसी एक बस्ती का वाकया है हमारी। एक आदमी को कैंसर हुआ, इलाज हो गया, सैयद बिरादरी में से था। 4 साल के बाद आइन उसी तारीख में फिर कैंसर हुआ, फिर इलाज हुआ, अच्छा हो गया। 4 साल के बाद फिर आइन उसी तारीख में तीसरा कैंसर हुआ। अजाइबात कुदरत तो देखो। एक बीवी है, एक मानसिक बच्चा है,
3 बेटियां हैं। 12वें साल पर फिर उसका इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद बीवी का भी इंतकाल हो गया। वो अल्लाह के अजीब कुदरत की करिश्मा साजी, एक पागल लड़का छोड़ा, 3 लड़कियां छोड़ी। अल्लाह की कुदरत की करिश्मा साजी को देखो। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं। हॉस्पिटलों की खबर, जेलों की खबर निकालना। जो जेल में कैद है 2 तरह के लोग होते हैं। एक निर्दोष कैदी। हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेलों के अंदर 50,000 से ज्यादा मजलूम कैदी है, जिसमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 18 से 20 हजार है, जिसमें से अक्सर कुल के करीब निर्दोष भी। अल्लाह के पैगंबर खबर निकाला करते थे, अशफ़क़त अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह के मखलूक के साथ शफ़क़त का बर्ताव, इस्लाह बैनन नास, समाधान करना। जो आदमी 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, मकबूल हज जो उम्रे का सवाब मिलेगा। 10 बरस के नफल एहतिकाफ से बेहतर है। आज तोड़ की मेहनत तो आदमी करता है, जोड़ की मेहनत नहीं करता। वो भी खाली हवस पूरी करने के लिए, वो भी खाली कुर्सी की लालच में, और वो भी खाली अपनी मनमानी में। बहुत दूर तक आप देखो इख्तलाफात की बुनियाद क्या है। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि आदमी शफकत वाला मामला में, ऐसे कम लोग होते हैं। मैंने ये मजमून इसलिए भी इख्तियार किया कि पिछली शबे जुमा में गुलाम मोहम्मद भाई दुर्वेश, जिसको बापू के नाम से गैर मुस्लिम याद करते थे, समाज सेवा का जबरदस्त काम इस मर्द मुजाहिद ने किया। जूनागढ़ की सिविल हॉस्पिटल में जितने भी मरीज होते थे, अपना पराया, जाना अनजाना, मुस्लिम गैर मुस्लिम, एक जबरदस्त मेहनत हुई। लंबी बीमारी के बाद पिछली शब जुमा अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। हमारी समाज के मवक्कर तकरीबन 3-4 टर्म में कारोबारी के मुअज़्ज़ज़ रुकन हाफिज मोहम्मद हाशिम भाई घमेड़िया लंबी बीमारी के बाद अल्लाह की रहमत के आगोश में समाज के चालू मेंबर खिदमत कर रहे हैं साथियों की। कभी रात 2 बज जाए, कभी 3 बज जाए, इस्लाह बैनन नास के काम। लोगों के सामने ये सिफात आते भी, नतीजे में क्या मिला? गालियां। नतीजे में क्या मिलता है? आस्ते ने चला। हमको आता क्या है? मारी लाखो, कापी लाखो, बाड़ी लाखो, तोड़ी लाखो, दूसरा कुछ आता ही नहीं। जबरदस्त गलती, इसकी इस्लाह जरूरी। उम्मत के 2 ही तबके रह गए हैं जिन पर हर एक आस्तीन चलाता है, या तो वो समाज का मेंबर या वो किसी मदरसे का मौलवी साहब। गलत है। इल्म अल्लाह की जबरदस्त अदालत है। अभी इसी पाकिस्तान के सैलाब में कसम खुदा ताला की, कुछ नहीं बचा, एक बुढ़ा बचा। सैलाब में अल्लाह का कुरान, अल्लाह की मस्जिद में खुदा की कसम खा करके कहते हैं, उस सैलाब ने जो इंसानियत को तबाह करके मुल्क को बर्बाद करके चला गया, कुरान के पुट्ठे के पानी भिगो नहीं सका। और वो बता रहा है कुरान का नुस्खा बिल्कुल क्लियर कट है। कसम खुदा ताला की, अगर किसी आलिम की उसका इल्म की बुनियाद पर किसी ने गाली दी और तौबा करने से पहले 12 काफिर मरा। बहुत जबरदस्त लम्हा फिक्रिया है। कौन उम्मत का तबका होगा कि इस्लाह बैनन नास के काम करेगा, इसका समरा और सीला गाली के अलावा कुछ नहीं। जुमा की मुबारक मौत नसीब हुई, कुरान सीने में, शहादत की मौत मिली। अल मक्तूल शहीदुन, पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद। मैंने ताज़ियत की मजलिस में 2 बातें जिक्र की थी। इनके बाप को भी मैं जानता हूं, वो भी पेट की बीमारी में जो है अल्लाह की रहमत में चले गए। पेट की बीमारी में मरने वाला शहीद,
लोगों के कड़वे कसेले हालात बर्दाश्त करके इंतकाम और बदले की ताकत है, फिर भी छोड़ देना यह आली हिम्मत का काम है। लिहाजा हम कदर करें। जो लोग इखलास के जज्बात के साथ काम करते हैं, हम तो काम करने वालों से यही कहते हैं कि सीले में ये मिलेगा, लेकिन जिसको दिखाने के लिए कर रहे हैं वो हर वक्त देखता है, वो कभी सोता नहीं, उसकी आंख में कभी ऊँघ नहीं है, उसकी आंख में कभी नींद नहीं है। लिहाजा अगर इस वजह से छोड़ रहे हो तो ये रियाकारी है, और अगर उसको बताने के लिए किया है जो न सोता है, न खाता है, न पीता है और हर एक की निगहदाश्त रखता है, तो करते रहो। शिकायत का नाम न लेना, इंतकाम और बदले की ताकत के बावजूद छोड़ देना, इंशाअल्लाह हुस्न खातिमा का जामिन होगा, जुमे की मौत नसीब होगी। बहुत बड़ी फजीलत, अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत। एक काम ये करने का है, 2 दिन से सुरेश चौहान ने, जो मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा है, और काजल हिंदू युवा तंजीम की या किसी तंजीम की एक बहुत बड़ी लेडी है, दोनों का बयान कलेजे को चीर देता है। सुरेश चौहान कहता है, मजमे में आवाम के मुसलमान बेटियों से लव मैरिज करके हिंदू बना दो, उसके 10 फायदे हम बोल भी नहीं सकते। इस भारत की धरती पर मंच पर से ऐलान होता है, क्यों? वो 10 जो वो फायदे बताता है, ऐलान हिंदुओं को, बच्चों को आजाद किया कि तुम मुसलमान औरतों से लव मैरिज करके निकाह करके ले आओ, तुमको 10 फायदे। पिछले साल पानीपत के हमारे एक मौलाना थे, वो यहां तशरीफ लाए थे। जब जमात वहां गई, अच्छे काम कर रहे थे मुसलमानों के, इसमें बुनियादी काम जो मुसलमान जवान लड़की गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुकात बढ़ाती है, उनको जाकर समझाते थे इस्लाम, और अगर कोई गड़बड़ हो गई इनके माँ बाप को समझाकर बच्ची के ईमान की हिफाजत करते थे। तवज्जो से सुनना, ताजा किस्सा है, इबरत, बहुत इबरत का मकाम। वो यहां घूमने के लिए आए, फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो में कुछ दम नहीं था। अब उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर, जो हिंदू युवा वाहिनी की सबसे पहली फाउंडर है, जिसने इस भारत देश में हिंदू युवा वाहिनी की बुनियाद डाली, अब हमको बोलना ही पड़ेगा, अंजाम तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अब हमको समझाना ही पड़ेगा। बेटियां रोज जा रही है, रोज भाग रही है, इसके पीछे का गुड़ क्या है, इस दाखले से समझो। ये नहीं कहूंगा तो अल्लाह के दरबार में मैं कभी छूट नहीं सकता हूं, कहना ही पड़ेगा। इनको रोकने, जब ये मंच पर से कहते हैं हमारी बेटियों को ललकारते हैं, तो हम मुसलमानों से हक की बात न करें? जरूर कहेंगे, होगा जो होगा, अल्लाह मालिक है। अब प्रज्ञा ठाकुर ने, आप नहीं जानते, 2002 के फसादात के बाद जेलों की सलाखों के पीछे थी, कहां जानते हैं, मोबाइल को बहुत जानते हैं। हम अपने जुल्मों को भूल चुके हैं। जब सबने इसको लात मार दी, तब मुसलमान इसको अपना रहा है। गुजरात में से भी, देश में से भी, सब इसको छोड़ रहे हैं तो मुसलमान इसको अपना रहा है। किसी का ठुकराया हुआ मुसलमान ले रहा है, अक्ल बसीरत से काम नहीं लेता। समझ जाओ क्या कह रहा हूं। उसने इस मौलवी साहब का वीडियो चेक किया, इसमें कुछ था नहीं, वो आए थे और ये पता हुआ था, बस इतना, दूसरा कुछ नहीं। अब इसने यूट्यूब चैनल चला रहे थे, चेक किया,
اس میں یہ ویڈیو مل گیا جس میں سومناتھ کا مندر، پھر انہوں نے سومناتھ کے ٹرسٹیوں کو یہ بھیجا اور ان کو فریادی بنایا۔ مولوی صاحب کو پانی پت سے پکڑ لیا گیا۔ پہلی انکوائری اس علاقے کا میں ہوں، اس وجہ سے مجھ پر ایک پولیس افسر کی آئی تھی جو آئی بی میں تھے، بہت اونچے عہدے پر تھے، لیکن اس نے اپنی پالیسی کے ساتھ انکوائری کی، ہم نے لا علمی کا اظہار کیا اور حقیقت یہی تھی۔ چند گھنٹوں میں رہا ہو جائے گی، اس بات کا وثیقہ دیا تھا۔ 3 مہینے جیل میں رہے، یہاں تک کہ جوناگڑھ کی جیل کے اندر حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، پورا قرآن تراویح میں سنایا بھی، اور پہلی مرتبہ اتہاس میں جوناگڑھ کی جیل میں یہ رمضان میں، اس کے اگلے رمضان میں بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن تراویح میں ساتھیوں نے شاید مسلمان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے۔ کام کرتے ہیں، حالات کا جائزہ، پتے کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب محنت ہوئی، ضمانت مل گئی 2-3 مہینے کے بعد، کوشش ہوئی، وہ ہمارے جمعیت کے ساتھی بھی، کام کرنے والا فعال نوجوان طبقہ بھی۔ ابھی دوسری پیشی میں پرسوں ملاقات ہوئی۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ کہ پانی پت میں سننے کے قابل بات، مسلمان بیٹیاں لو جہاد میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق کی پاداش میں جو چلی جاتی ہے اور وہ مرتد ہو جاتی ہے، ان کو یہ بچا بچا کر محنت کر کے اس کے اسلام کی، دین کی حفاظت میں اپنا وقت، اپنی جان قربان کرتے تھے۔ ایک جوڑا تھا، آج بھی موجود ہے۔ ایک لڑکی تھی جو مسلمان کے گھر سے نکل کر کے چلی گئی تھی، 5 سال ہوئے، 5 سال۔ اب وہ بیٹی ماں کے پاس آئی، باپ تو مر چکا، اس گھر میں 3 یا 4 بیٹیاں تھیں، مر چکا باپ۔ نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو یا بہنیں، یا 2 بیٹی یا بہن، 1 بیٹی یا بہن، اس کی تربیت کرے، کفالت کرے، دین سکھائے اور جوانی میں دیندار مرد سے نکاح کرا دے، میں محمد الرسول اللہ جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ کوئی مرد نہیں خاندان میں، مسلمانوں 4 بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، نکاح نہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے، وہ بیٹی 5 سال کے بعد اب گھر آتی ہے، ابھی 5 سال کے بعد اب گھر آتی ہے۔ ماں ہے، دل میں شفقت اور محبت ہوتی ہے، بیٹی کو جگا دی، اس کا درد دکھ پوچھا، بیٹی نے کہا میں نمک حرام ہوں، اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن امی جان میں مرتد نہیں ہوئی ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے میں مرتد نہیں ہوں، میں نے ارتداد نہیں، میں مسلمان ہوں، میں نے کہا تھا میں میرا دھرم پالوں گی، تو تیرا دھرم۔ اب وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، اب سنو، یا تو ہندو بن جا، یا تو مجھے 3 لاکھ روپے دے دے۔ یہ اپنی ماں کے پاس 3 لاکھ روپے لینے آئی تھی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ میری ماں 2.5-3 لاکھ میں میرا ایمان بچ جائے گا، اگر میں نہیں دوں گی تو یہ ظالم مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ 2.5-3 لاکھ کیوں مانگتے ہیں؟ اگر میں ہندو بن جاتی ہوں تو ہندو یووا واہینی اس کو 3 لاکھ دیتا ہے، جیسے کل کی سریش چوہان کی آفر میں 10 باتوں میں سے ایک بات ہے، اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، آفر ہے اس کی۔ اگر ہندو بن جاؤں گی 3 لاکھ اس کو مل جائیں گے، اس کو نہیں ملتے ہیں ہندو یووا واہینی کی طرف سے، اس وجہ سے کہ میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اے میری ماں، اگر تو میرا ایمان بچانا چاہتی ہے تو 2.5-3 لاکھ کا انتظام کر، یہاں گھر میں پھاکے ہیں، یہاں گھر میں پانی پی کر گزارا ہو رہا ہے، یہاں 4 3 باقی بیٹیاں ہیں جن کے لیے کوئی فرقتا نہیں پیغام نکاح دینے کے لیے، نہ کپڑے پورے ہیں، کھانے کے پھاپے پڑے ہوئے ہیں، پڑوس میں مسلمان مالداروں کے محلے ہیں، لیکن کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے مسلمانوں، تمہاری مالداری خدا برباد کر دے، یہ قارون کا خزانہ ہے، کہ ایسے موقع پر بھی کام نہ آئے۔
ایسے موقع پر بھی کام نہ آئے وہ قارون کا خزانہ آگ لگا دینے کے قابل ہے. اگر محمد رسول اللہ موجود ہوتا تو آگ لگا دیتے. بیٹی کے ایمان کا مسئلہ. اب یہی مولوی صاحب نے کہا کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ اس کی وہ رقم ادا ہو جائے, اس کا ایمان بچ جائے. کہ اس سے پہلے ایک جوڑا تھا ایسا, میں اس کو سمجھانے کے لیے گیا, اس کی ماں نے مجھے بلایا اور اس نے یہ پوری کارگزاری اپنے شوہر کو بول دی, اور اس کے ہندو شوہر نے ہندو یووا واہنی میں اپلیکیشن کی, اور اس ہندو یووا واہنی کے پرمکھ نے اس مولوی صاحب کو ٹٹولا, جانچا کہیں ویک پوائنٹ ہے تو یہ ویک پوائنٹ ملا اور اس پر جیل کی سلاخوں میں بھیج دی, اور حقیقت میں وہ ویک پوائنٹ بھی نہیں تھا. یہ بھارت دیش کی وارتا ہے جس میں یوں کہہ رہا ہے یہ منچ سے کہ 10 فائدے ہوں گے, اور کہتا ہے تم مسلمان عورتوں کو بغلا پھسلا کر شادی کر لو, اور وہ یوں کہتا ہے کہ ہندو بہنیں مسلمانوں سے عاجز, مسلم بہنیں مسلمانوں سے عاجز ہو چکی ہے. وہ یوں کہتا ہے مسلم بہنیں مسلمانوں کے ویوہار سے عاجز ہو چکی ہیں, اور وہ 10 فائدے دیکھ کر ہندو لڑکے کو اپناتی ہیں. اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسلام میں طلاق کا رواج ہے اور ہندو مذہب میں طلاق کا رواج نہیں ہے, اس لیے مسلمان بیٹی بجائے مسلمان شوہر کے ہندو کو پسند کرتی ہے, اور باقی کے 9 انشاءاللہ دوسرے موقع پر ذکر کریں گے. آپ بھی جانتے ہیں اب وعظ و نصیحت تو ہو رہی ہے, یہاں ڈرگس پر بہت ساری باتیں پہلے بیان کی جا چکی, بیانات بھی ہوئے. ڈرگس کی باتیں چلتی تھی, گھر گھر میں آ گیا, جوانوں میں آ گیا, اس کے بغیر جوانوں کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے. شراب حرام ہے, اس پر مرنے والا کفر کی موت مرتا ہے, لیکن ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے. ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی اب سخت قدم اٹھایا جائے. دیکھو گھر میں جو ہو رہا ہے, میں آپ کو بول ہی دوں, لوار واڑے میں سے ابھی اخیر میں تائی یا شیخ کی لڑکی جو بوئے اس کے ساتھ چلی گئی, کیا کہتے ہیں اس کو, پلاسٹر کا کام کرنے والا, سماج کے ساتھ. میرے بزرگوں قسم خدا تعالیٰ کی, اللہ کی قسم, یہ باپ رکشہ چلاتا ہے, اب کہتا ہے کہ مسلمان سماج میرا دھیان نہیں دیتا ہے. وہی باپ کی موجودگی میں وہ بیٹی 3 برس سے اس ہندو بیٹے کا جنم کے دن کیک گھر میں کاٹتے تھے, کیک گھر میں کاٹتے تھے. تب تو کہا گیا تھا, تب تیری غیرت کہاں مر چکی تھی. ہندو بیٹے کو 3 سال اس کا جنم تیری بیٹی کے گھر میں منایا جا رہا ہے, اور اب تیری بیٹی اس کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے, اور تو یوں کہتا ہے کہ مجھے مسلم سماج ساتھ نہیں دیتا. بیدار ہو جاؤ مسلمانوں, سخت قدم اٹھانا ہے. قسم خدا تعالیٰ کی, اگر وہ بیٹی نظر آئی ہے یا بہن نظر آئی ہے, من بدل دینہ فاقتلو, من بدل دینہ فاقتلو, قتل کر دو. علاج ہے, مار ڈالو, قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلو, مرتد ہو گئی, قتل کر دو. آپ کا باپ ہونا کل قیامت کے دن عزت دلائے گا محمد رسول اللہ کے دربار میں. اب بہت ہو گیا, اب سن کر تھک گئے, اب عاجز آ گئے. او بیٹی اگر تو قادر آ گئی اس پر تو اس کا اس میں تناسل کاٹ ڈال. ہم تیرے ہیں اور موت کے آخری سانس تک تیرے رہیں گے. اب کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے 23 جماعتوں کو جوڑ کر کہا تھا نیتی نیم بدلو. گھاچی نہیں ڈکری گھاچی نہ گھر میں, سید نہیں ڈکری سید نہ گھر میں, میمن کی بیٹی میمن کے گھر میں. توڑو سب, مسلمان تلاش کرو. اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ, 2 باتیں دیکھو, 2 باتیں. دیندار ہے, اچھے اخلاق والا ہے, بیٹی دے دو, بیٹی دے دو اس کے نکاح میں. بہت پریورتن کا ٹائم آ گیا ہے. اب پورا دیش ان حالات کی وجہ سے اس سے کنٹاڑ گیا, اور مسلمان نے یہی
गिरे हुए टुकड़े को अब उठा रहा है, अपनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे काम चलेगा? अगर कोई भी आलिम हालात पर नजर न रखकर उम्मत के सामने कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर हमने इल्म क्यों हासिल किया? आखिर हमने तुम्हारी 10 साल ज़काते मदरसे में जमा हुई और फिर उससे हमने इल्म हासिल करके हमने आलिम की सनद क्यों ली? हमारा जो होगा वो अल्लाह मालिक है, लेकिन कम अज कम मेरे भाइयों, अपनी जवान बेटियों को लेकर घर में बैठो, इनकी तरबियत करो। मैं ये कहता हूं, मखलूक तालीम जहां होती है, जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है और माकूल पर्दे का इंतजाम नहीं है, अपनी बेटी को वहां पढ़ाना बढ़ाना हराम है, हराम है, हराम है। ये जाएगी फिर। पूरा इस्लाम शर्म की वजह से कहीं मुंह बताने के काबिल नहीं है, उनके मजमे में कहीं हम सीना छोकने के काबिल नहीं रहे। कितनी बेटियां जा रही, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो व्हाट्सएप पर रोजाना फोटो आते हैं, जब वो एप्लीकेशन डालती है रोजाना जो फोटो आते हैं, पिछले 10 दिन में 15 बेटियां हिंदू लड़कों के साथ हमारे सौराष्ट्र में से चली गई, जिसमें सिरे फहरिस्त जामनगर, भावनगर वगैरह है। वो डंकी की चोट सुरेश चौहान कहता है कि 10 फायदे में तुम्हें देता हूं, तो उस पर क्या ये हुकूमत की तरफ से पश्तपना ही नहीं? फिर क्या वो मनफावे ऐसा करे? हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? चलो आवेदन पत्र देने के लिए, क्या होगा? वो तुम्हारे चले जाने के बाद टोकरी की रद्दी कर टोकरे में डाल दिया जाता है। बहुत सारे कानून और ज़ाब्ते की भी रियायत करनी पड़ती है, लेकिन हर मर्तबा हमको कानून न समझाया जाए। अब कुछ इल्हामी बातें जो खुदा दिल में डालता है तहज्जुद के वक्त में, वो ईमानी गैरत की जरूरत है मां बाप को। अगर नाशाइस्ता हरकत देखो तो वो जिल्लत का दीन आंख देखे, उससे पहले गोरे गोरिस्तान में वो बेटी अच्छी है, समझ जाओ। अगर 2 वाकयात दर्जन मुसलमान हिंदुस्तान की धरती पर अगर ये कर ले, मालिक के इज्जत की कसम, सुबह कयामत तक कोई बेटी हिम्मत नहीं करेगी। जरूरत है, अपनाना चाहिए। और जो लगे हुए नौजवान हैं, रात दिन उन पर आस्तीने न चढ़ाए। वो किस तरह काम कर रहे हैं, अगला पिछला हम कुछ नहीं जानते हैं। हम तो सिरे फहरिस्त होते हैं, लिस्ट में नाम होते हैं, कौन क्या करता है। हर हुकूमत की खुफिया एजेंसियां काम करती, बल्कि अब तो हुकूमत को तो छुटकारा हो गया, इसलिए कि मुसलमानों में से ऐसे दल्लाल हजारों मिलते हैं जो बगैर इनकी इंक्वायरी के वहां पहुंचते हैं। मिले करे, वो अपना काम करेंगे। इस खौफ से, इस डर से क्या अल्लाह का इल्म और इस्लामी गैरत कोई हैसियत नहीं रखेगी? बहनों का इस कदर चला जाना, बच्चों की माँ बापों का इस तरह चला जाना बहुत शर्म का मकाम है। लिहाजा इस्लाम की दोनों बुनियादें, ये अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत का बर्ताव, ये अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत है। जब ये दोनों बुनियादें मजबूत होगी तब हम मजबूत रहेंगे, ईमान मजबूत रहेगा। अभी हम 35 करोड़ है और वर्ल्ड में हम 200 करोड़ है, 200 करोड़ बहुत भारी तादाद है। लिहाजा डर का कोई मकाम नहीं है। इज्जत को बचाने में, गैरत को बचाने में, हमीयत को बचाने में, दीन ईमान को बचाने में अपना इत्तिहादी प्लेटफार्म मजबूत रखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं, सियासी किसी तंजीम में चाहो तुम लड़ो, चाहे तुम वजीर आजम बन जाओ, चाहे तुम पीएम सीएम बन जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस्लामी इत्तिहाद को अगर पारा पारा किया, कसम खुदा ताला की, वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस तरह जैसे मैंने अभी बेटी के बाबत पैगंबर का इरशाद सुन करके सख्ती बरती, फिर वो दिन दूर नहीं है कि फिर हमको सख्ती बरतनी पड़े। इस्लामी इत्तिहाद मजबूत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमावे। दीन की 2 अहम बुनियादें हैं, इन दोनों बुनियादों पर हम मजबूत रहें। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के अहकामात की मोहब्बत और अल्लाह के मखलूक के साथ शफकत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए।
धामरली राजस्थान बाड़मेर में आया, जहाँ एक बहुत ही मुस्तहिक इदारा है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ तलबा गुर्बत की शिकार है। ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के ज़रिए से नमाज से फरागत के बाद ताउन करते हैं।